د میډیا سره خبرې کوي، راځي چې نیغ په نیغې وګورو. کیا وجہ تھی، ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے. 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر. اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے. میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا. میں نے بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں اور وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایت سے بالا تر ہے. آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو. یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے، 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر اپنا لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر، اس نے پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار، گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے، ایک دہانے پر ہے، اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہیں. یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے. میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں. میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے. ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا. ہمارا ایک رسپیکٹیبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے. مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away. تو ہم نے فاتحہ پڑھا، مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پورا کیا اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیشن کنڈکٹ کی. اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں، اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق
सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नज़र आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत को हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नज़र आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान ख़ान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन के किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माज़रत नहीं की, न उनसे रब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की ज़िम्मेदारी है। सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने किसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के मेंबर से रब्ता नहीं किया, किसी पार्टी से रब्ता नहीं किया। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के वफ़द के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड है, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आपका किरदार और आपका ये अमल स्याह लिखा जाएगा। और कौम ने आपको इज़्ज़त बख्शी, 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान ख़ान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे
इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान ख़ान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊँचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। मेरे ख़्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों की का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ विप कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से उनके इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए ये कम होगी। और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आए थे सिलेक्शन के ज़रिए, और हम इनको बड़ी इज्जत के साथ एक जमहूरी तरीके से रुखसत कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। हमें ये बताया जाए कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आइनी काम है? हमें ये बताया जाए कि आया इन MNAs का ये हक़ नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब करे? हमें ये भी बताया जाए कि जो लोग कल तक इनके साथ थे और जब ये इनके साथ मिल रहे थे तो तब ये खुशी खुशी से ये कहते थे कि आज हमने एक और विकेट ले ली, आज लोगों का ज़मीर जाग गया। आज वही लोग जो पिछले 2 साल से नाराज़ है, गिलामंद है, आज जब उस नाराज़गी और उन गिलों की वजह से वो इनका साथ नहीं दे रहे, तो उनकी ये कोशिश है कि एक तरफ असेंबली के अंदर कार्रवाई को डिले किया जाए, दूसरी तरफ वक्त ले रहे हैं ताकि वो लोगों को मना सके, और तीसरी तरफ बदकिस्मती से वो मसले जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, इमरान साहब उन मसलों को जलसों में ले जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए हमदर्दी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि वो हालात को मज़ीद ख़राब करे,
बड़ी आसान बात है, अगर उनके पास अक्सरियत है बिस्मिल्लाह करे, इस हाउस के अंदर आए, अपनी अक्सरियत को साबित करे, और अगर उनके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस मोशन को टेबल करके इस पे वोटिंग की जाए ताकि हम बड़ी खुशी के साथ उनको रुखसत कर सके। शुक्रिया। नहीं वो मोहसिन दावड़ साहब, मोहसिन दावड़, एक सेकंड, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तफसीलन तमाम बातें हो गई हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा कि रिवायत ये रही है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली उसकी फौतगी होती है तो उसके बाद हम इजलास एडजर्न करते हैं। तो जिस तरह अख्तर महंगल साहब ने भी कहा कि आइन का ख्याल रखते नहीं है, रूल्स का ख्याल रखते नहीं है, और रिवायात जो है वो आज उनको बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हालांकि इन्हीं रवायात, इन्हीं कवानीन और इन्हीं आइन की जो किताब है, इसको जिस तरीके से पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने रौंदा है, तो मेरे ख़्याल में उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में हमें कभी भी नहीं मिलती। और साथ ही साथ मतलब कितना 1, 2, 3 दिन कितना अपने इक़्तिदार को ये खींच लेंगे। अगर मेरे ख़्याल में वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो आए, मैदान पे मुकाबला करे, अपने मेंबरान को पूरे करे। और मेरे ख़्याल में ये जो मौजूदा चाहे वो स्पीकर साहब का किरदार था या ओवरऑल जो मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम में उसको कहूँगा, क्योंकि ये जमहूरियत है नहीं, और हमारे जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, हम पर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने किस तरीके से जमहूरियत को बहाल करना है। क्योंकि जितनी इंक्रोचमेंट इन गैर जमहूरी कुव्वतों ने इन 3.5-4 साल में की, उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि स्पीकर साहब की जितना आपने रोन सकें आप मज़ीद आप नहीं कर सकते। 1-2 दिन अगर आप मज़ीद ले लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको हो नहीं है, अपने आप को मज़ीद आप बदनाम कर लेंगे। तो वो एक अली वज़ीर साहब के बारे में भी हम अब अभी हमने एक जॉइंट प्रोडक्शन आर्डर जमा करा दिया है पूरे अपोजिशन कायदीन की तरफ से। वो हमें पता है कि वो उन्होंने जारी नहीं करना, क्योंकि हम हमारे इजलास से पहले वो, और ये प्रेरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असम्बली का। आज अपोजिशन का एक मेंबर जेल में है, कल वो खुद भी, उनका भी कोई बंदा हो सकता है, वो पाबंद है उन्होंने बुलाना, लेकिन अभी तक उन्होंने उन रवायात का भी ख्याल नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह मुझसे पहले भी कायदीन ने फरमाया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, उन्होंने किसी और के कस्टोडियन का यहाँ पर किरदार अदा किया और गैर जमहूरी कुव्वतों के कस्टोडियन का किरदार अदा किया। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और यहाँ पर जो सिविल सुप्रीमेसी का हमारा जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, उसको रोकने के लिए जितना भी उनसे हो सकता वो उन्होंने वो किया है पिछले 3 सालों में। बहुत शुक्रिया। साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो बकौल आपके वो आर्टिकल 6 के जो है वो दायरा कार में भी आते हैं, फिर अब उन्होंने एक और आपके बकौल एक और गैर कानूनी काम किया है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेफाक नहीं लाए? और दूसरा सर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी दोबारा वो पेशी शुरू होने वाली है 1:30 बजे, तो क्या ये मामला वहाँ लेके जाया जाएगा? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली थी कि स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ लाया जाए।